ইভিনিং আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইষ্ট কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও লৈ পেলাই আমাৰ লোকসভা ভিত্তিক আমি এটা প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নেশ্যনেল কমিটি তৰফৰ পৰা ষ্টেট কমিটি তৰফৰ পৰা আমাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে প্ৰত্যেক লোকসভা ভিত্তি আমাক প্ৰেছ কনফাৰেন্স পাতিব দিছে। কাৰণ যোৱা এই 9টা বছৰ কালত যোৱা 2014 চনৰ পৰা আজি ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বত 2014 চনৰ পৰা আজি 9 বছৰ আজি পাৰ হ'ল। সেই কালত আমি 9 বছৰ কালত আমি ভাৰতীয় সেৱা কৰিছোঁ, চৰকাৰ আমি ভালকে চলাইছোঁ, সুশাসন চলাইছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি গৰীব কল্যাণৰ কাৰণে আমি বহুত আঁচনি লাগে আজি গৰীব ৰাইজৰ কাৰণে অন্তদয়াবিলাকৰ কাৰণে আমি আজি এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ আমাৰ নেশ্যনেলৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ তথা আমাৰ অসম প্ৰদেশ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সহ প্ৰভাৰী পৱন কুমাৰ শৰ্মা তেখেত পৱন কুমাৰ সবৰ আগত চিনাকি কৰিব দিছে। পৱন শৰ্মাজী তেখেত মোৰ ঘৰ হৈছে দিল্লী, আগত দিল্লী তেখেত MLA আছিলে, এক্স MP আছিলে। ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ মাজত অসম চৰকাৰৰ আমাৰ মন্ত্ৰী আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ সেক্ৰেটাৰী আৰু পূব কাৰ্বি আংলং ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সহ প্ৰভাৰী আমাৰ নন্দিতা বৰগোঁছা চবেই জানে। আমাৰ মাজত উপস্থিত সাংসদ এই ডিপু লোকসভা সাংসদ আমাৰ হৰেণ সিং ডাঙৰীয়া, নমস্কাৰ চবেই জানে। ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ সিনিয়ৰ মোষ্ট আৰু অসম প্ৰদেশৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কোৰ কমিটি মেম্বাৰ আৰু ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰভাৰী আমাৰ বিজয় কুমাৰ গুপ্তা ডাঙৰীয়া। ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসম প্ৰদেশৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ তথা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ সহ প্ৰভাৰী আমাৰ পংকজ বৰবৰা ডাঙৰীয়া আৰু স্পক্স পাৰ্চন। আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমাৰ বিধায়ক আৰু এই ডিপু সমষ্টিৰ বিধায়ক বিজয় সিং লেং ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ। আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিধায়ক আৰু হাওৰাঘাট সমষ্টি বিধায়ক আমাৰ দৰ্শী ৰহান ডাঙৰীয়া, চবে চিনি পায়। তাৰ মাজত আমাৰ অসম প্ৰদেশৰ মিডিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কনভেনৰ আমাৰ দেৱান ধ্ৰুৱ জ্যোতি মৰাল ডাঙৰীয়া, তেখেত হৈছে মেইন আমাৰ মিডিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কনভেনৰ। আৰু মই নিজে ভলেণ্টাৰী ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট। আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ অসম প্ৰদেশৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সেক্ৰেটাৰী ষ্টেটৰ সেক্ৰেটাৰী আৰু স্পক্স পাৰ্চন আমাৰ মানস ডেকা ডাঙৰীয়া। আৰু আজি উপস্থিত এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সত আমাৰ সকল আছে, ডেপুটি চেয়াৰমেন আছে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ অফিচ বেয়াৰ্ছো আছে। তো আজি এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সত গোটেই কথাবিলাক আমাৰ নেশ্যনেলৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ আৰু অসম প্ৰদেশৰ সহপ্ৰভাৰী আমাৰ পৱনজী তেখেতক হেণ্ডঅভাৰ কৰিছে। তাৰপিছত আমাৰ সাংসদ থাকিব, আমাৰ নমিতা বাৰ্ডী থাকিব, মন্ত্ৰী, তাৰপিছত MLA থাকিব, তাৰপিছত আমাৰ জিলা সহপ্ৰভাৰী ডাঙৰীয়া বিজয় গুপ্তাসকলে। थैंक यू। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर ऐसे व्यक्ति का खाता खुलना चाहिए जिसका आज अब तक बैंक में कभी आवागमन नहीं हुआ। 44 करोड़ से ज्यादा उसमें खाते खोले गए, तो
तो विरोधियों ने कहा कि खाते तो खुल के उसके बाद क्या होगा, परंतु आपने अनुभव किया होगा कि किसान निधि का पैसा उनके पास में आज बिना बिचौलिए के पास में सीधा उनके खाते में जाता है। पेंशन का पैसा उनके साथ में जाता है। और स्वदेशी के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर 9 वर्षों में सब चीजों को मंगवाया जाता है, यानी हमारे आर्मी जितना भी हमारा आर्मी का जो सामान है, हमारे सैनिकों का वो है, वो छोटी से छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों को भी हमें विदेशों की तरफ देखना पड़ता था। परंतु इन 9 वर्षों में हमने जहाँ सीमाओं को सुरक्षित किया है और सीमाओं को सुरक्षित के साथ साथ में जो पड़ोसी देश अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं खड़ी करते थे, उनका अगर आज उदाहरण अगर आप देखें, जब उन्होंने इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश की, हमने सीमा पार करने में कोई संकोच नहीं किया। हमने वहां जाकर हमारे शहीदों सैनिकों का बदला लेने का काम भारत की हमारी सैनिकों हमारी आर्मी ने किया और हमारे प्रधानमंत्री जी सब उसकी देख रहे हैं, किस प्रकार से वो चल रहे हैं, उसका सीधा प्रसारण उन्होंने अपने आंखों से देखा। और उसके साथ में जब हम आर्थिक दृष्टि से पांचवें नंबर पर खड़े हैं, ब्रिटेन को पीछे करके खड़े हैं, दूसरी तरफ अगर देखेंगे पड़ोसी देश कल तक जो आंखें दिखाता था, आज आप अनुभव करेंगे वो कटोरा लेकर दुनिया के सामने घूम रहा है और हालात इस प्रकार की हो गई है कि उसको कोई उसकी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भारत जहाँ स्वदेशी के आधार के ऊपर पनडुब्बी से लेकर हवाई जहाज से लेकर हेलीकॉप्टर तक, हेलीकॉप्टर से लेकर जो हमारी सेना में काम आने वाली जो चीजें हैं, उन सब चीजों को, और समुद्री हमारी सुरक्षा को लेकर हमने सब चीजों का निर्माण करने का जो काम है, वो हमारे स्वदेशी हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो जिसको हम कहते हैं कि जो इंजीनियर्स हैं, उन सब के माध्यम से उन सारे कामों को करने के लिए हम देश के सामने उस प्रकार का एक, जिस प्रकार से हमने कहा कि केवल दुनिया के से सामान मंगवाया जाता था, भारत सब जगह निर्यात करने के साथ साथ में हम कई बार अपने देश के बारे में अनेक प्रकार की गौरव गाथाएं की चर्चा करते हैं समय समय पर, परंतु आप इन 9 वर्षों में अनुभव करेंगे कि जहाँ तिरंगा का सम्मान पूरे देश के अंदर, अभी 15 अगस्त को भी आपने अनुभव किया होगा, हमने हर घर के ऊपर हमने तिरंगा लगाया। लेकिन ये तिरंगा जो है ना, केवल भारत में नहीं है, आज दुनिया के देशों में जब यूक्रेन का और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, उस समय पूरे दुनिया के जो छात्र छात्राएं या व्यवसायी लोग वहां पर किसी कैसे युद्ध से निकला जाए, किस प्रकार से सुरक्षित पहुंचा जाए, भारत पहला देश था जिसने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात की। और मैं गर्व से इस बात को कह सकता हूं कि जिसके हाथ में भी तिरंगा था, देश के दुनिया के किसी भी देश के नौजवान के हाथ में था, वो सुरक्षित अपने देश में पहुंचा। अगर इस प्रकार की हमारे देश के बारे में जो हमारी जो पहचान है, हमारी जो ताकत है, हमारे जो तिरंगा के जो सम्मान करते हैं, पूरे दुनिया ने इस प्रकार का उसको किया, उसका परिणाम भी आपने अनुभव किया होगा। और मित्रों, मैं बहुत सी चीजों पर अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो बहुत सी चीजों की मैं चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जैसे हमारी राज्य सरकार ने अनेक प्रकार की योजना के माध्यम, जैसे हमारी कुछ महिलाएं हैं जिनकी जो शादी नहीं करती या कुछ विधवा हो जाती हैं, अरुणोदय के माध्यम से उनका 1250 रुपए उनके घर तक पहुंचते हैं और उनके सीधे खाते में पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा उसको बढ़ाने का काम सरकार सोच रही है। ऐसे बहुत सी योजनाओं को एक एक अगर मैं चर्चा करूंगा तो मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि समय लगेगा, परंतु मेरा भरोसा और मेरा विश्वास कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनको प्रारंभ से उन्होंने कहा कि छोटी छोटी चीजों को स्वच्छ भारत, यानी उस समय किसी को लगा स्वच्छ भारत का ये क्या है, आज हम देखते हैं पूरे देश में, यानी आपके साथ अगर आपका छोटा बच्चा बैठा हो और आप गाड़ी से कुछ कचरा फेंकना चाहते हो तो आपके ध्यान में आए या ना आए, लेकिन छोटे बच्चे को जरूर ध्यान में आता है कि नहीं पापा यहाँ नहीं, एक दूसरी तरह का आना है। ये पूरे देश में है। और आपने रेलवे के बारे में चारों तरफ से इस प्रकार से रेलवे के माध्यम से पूरे देश में और नॉर्थ ईस्ट में, मुझे लगता है मिजोरम में भी
शायद अगले वर्ष 2023 तक मणिपुर में उसमें सबसे हमारी रेलवे का काम हो जाएगा और एयरपोर्ट का भी काम लगातार आगे बढ़ रहा है। और ऐसे ही इन 9 वर्षों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से और आयुष्मान भारत के साथ साथ में जो जन औषधि का जो पक्ष है, अभी शायद उसका इतना प्रचार नहीं हुआ, परंतु जो 400 रुपए की 500 रुपए की जो मेडिसिन आती थी वो 30 रुपए में 40 रुपए में सामान्य वो मिल जाती है और वो वही काम करती है जो एक महंगी दवाई करती है। ये ताकि कोई बीमारी के कारण से महंगी दवाई के कारण से कोई ऐसा ना हो कि वो दुकान तक पहुंच ना पाए और मेडिसिन उसको मिल ना पाए। छोटे से छोटे चीजों के पक्ष को सोचकर प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि जिस प्रकार से काम कर रही है, आने वाले समय में ऐसे नहीं लोग उनको कहते हैं, अगर आप वो अभी ऑस्ट्रेलिया गए तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बॉस हैं, ये कोई साधारण बात नहीं, अभिमान है हम लोग। दूसरे देश के हमारे जो उस प्रकार के रहते हैं तो वो सब आज भारत की तरफ देख रहे हैं। मेरा आशा नहीं पूर्ण भरोसा है कि भारत जिस प्रकार से मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में भारत की तस्वीर दुनिया के सब देशों से मजबूत होगी। भरोसे और विश्वास के साथ में इन 9 वर्षों में जिस प्रकार से काम हुआ उसके दृष्टिकोण से आज सब आप लोगों को, मित्रों को हमने आपके समक्ष उस विषय आपको बुलाकर बताने की बात थी तो हमने रखे। हमारे बीच में हमारे सांसद साहब बैठे हैं, फिर भी कोई चीज आप लोगों को पूछना है तो ध्यान में करना है तो आपको सादर आमंत्रित है। परंतु आप जो सरकार काम कर रही है उस सरकार के माध्यम से जो योजनाएं चल रही है और उस योजनाओं का लाभ सीधा जो लोगों को मिल रहे हैं वो आपके माध्यम से भी लोगों के पास में पहुंचे, इसी विश्वास के साथ में आपसे मिलने का था। बहुत बहुत धन्यवाद।